Assalamualaikum everyone. Today my topic of my name is Iman Fatma. Today my topic of presentation is a very important topic of data structure, the red black tree. It is a type of self-balancing tree that is widely used in many programming systems. This is the table of content. We are gonna talk about introduction, mechanism, and benefits, and summary at the end. Introduction. The introduction. What is basically the question is what is a red black tree? Red black tree is a binary search. Is a kind of binary search tree. It is the special thing. The special thing about it. It keeps itself automatically balanced automatically, and by using colors like black and red and rotations. Because of this balance, we can perform search, insert, deletion, and operations quickly. The time complexity is big O log n. It is the time complexity of the red black tree. It is mainly used. The next question is what are the uses of red black tree? The uses of red black tree is many. It is used in Java tree maps and tree sets. Then and C++ ST and uses them for map and set. Even Linux kernel uses them to manage tasks. Many systems and memory management uses them for the efficiency. And what are the rules of the red black tree are each node should be either red or black. No other color will be accepted. The root node is always black. The from root node is the root from which our tree starts, and all null tree leaves are black. Null leaves can be which do not have any child, like they do not belong. They do not have any other child. A red node can't have a red child. Every path from a node is descendant leaves must have same number of black nodes. This is the This is the basic node structure. First, we use the class node and int data and data string color. We string red or black and node left, right, and parent. And the next step is insertion step. How are we gonna insert our node in a in this tree? Color it red. Insert a node color in fixed by violation by coloring rotations left and right. This is a pseudocode of insertion. And first we're gonna insert a node and a node. Then node should be created new node and insert new node fix insertion. And while we can use parent is red if uncle is red. Case 1 if recolor एल्स इफ मतलब अगर उसका कलर उसका सेम नहीं है, मतलब अगर उसका कलर चेंज करना है तो हम उसको कलर चेंज भी कर सकते हैं. इफ एल्स इफ नोड इज ट्राइंगल केस टू रोटेट पेरेंट. एल्स केस 3 रोटेट ग्रैंड पेरेंट. मतलब ग्रैंड पेरेंट मतलब हमारी वो रूट नोट आ जाएगी जिसका हमने फर्स्ट में ब्लैक किया था. और नेक्स्ट स्टेप में हम रेड को करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में रेड मतलब अगर रेड उसका नेक्स्ट चाइल्ड आ रहेगा तो इस तरह हमारी पूरी एक हिरार्की पैदा होगी जिसमें ग्रैंड फादर एज अ फॉर एग्जांपल हम ग्रैंड फादर ऊपर लेते हैं, फिर हमारे आएंगे ग्रैंड फादर के बाद हमारे दूसरे पेरेंट्स आएंगे, फिर हमारे लेफ्ट साइड पे मतलब दूसरी साइड पे हमारे अंकल्स वगैरह रिलेशनशिप में आएंगे. Deleting nodes. First we if we delete a node from we delete like a normal BST tree. If we remove a black node, it may break the rule of black count. We can get a double black problem. We can solve it by recoloring rotations. Our goal is to make sure that trees still follow all the 5 red black rules.
The next is pseudocode for deletion. After deletion, if the deleted node plus black, we can fix it by fixed delete inside fixed delete. If sibling is red, rotate and recolor. If siblings children are black and recolor, otherwise rotate and adjust color. In the end, we make sure the tree remains valid and balanced. Explain the rotations. My name is Amreen, and I will discuss the important topic of binary search tree, which is rotations, comparison, advantage, disadvantage, and examples. First of all, we have a rotations. What is rotation? Rotations are there are two main types: left rotations and right rotation. What is left rotation? Left rotation is node moves up, right child takes position. And what is right rotation? Right rotation is the left child goes up and parent goes down, right down. मीन्स ये है कि जो लेफ्ट चाइल्ड होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब राइट से वो लेफ्ट हो जाते हैं राइट रोटेशन में, लेकिन जो पेरेंट होते हैं वो राइट में डाउन की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल आती है बिफोर इंसर्शन। इंसर्शन से पहले हमारे पास हैं 10 ब्लैक ट्रीज और इसमें हमारे पास 5 रेड है और 15 रेड है। आफ्टर इंसर्टिंग फर्स्ट में हमारे पास 10 ब्लैक ट्री है। जब हमने 5 रेड इंसर्ट और 15 रेड इंसर्ट किए और फिर हमने 5 रेड से वन मोर रेड इंसर्ट किया। वन मोर मीन्स ये कि ये 5 से लेस है तो ये 5 की ही तरफ आएगा, ये 15 की वाली साइड पे नहीं जाएगा। अगर ये 5 से ग्रेटर होता तो ये 15 की तरफ जाता। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट अकर हुआ है कि जो इनके रूल्स से वो यहाँ पर डाउन हो गए। मीन्स ये कि दोनों ये राइट आ गए, दोनों ये रेड आ गए, हालांकि दोनों को रेड नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर या एक रेड होता एक ब्लैक होता, इस तरह करके भी। इनका कंपैरिजन देखना है, कंपैरिजन विद अदर ट्रीज है। हमारे पास आते हैं, इनके फीचर्स हैं बैलेंसिंग, इंसर्ट, डिलीट, सर्च टाइम और इम्प्लीमेंटेशन की हम इनमें किस तरह करते हैं। रेड ब्लैक ट्री में बैलेंसिंग लेस स्ट्रिक होती है, मीन्स हमें खुद इनको बैलेंसिंग करना पड़ता है। एवीएल ट्री में मोर स्ट्रिक होती है, एवीएल में मोस्टली बैलेंसिंग होती है। और बाइनरी सर्च ट्री में बैलेंसिंग नहीं होती, हम इनमें खुद इंसर्ट करते हैं, डेटा डिलीट करते हैं, इनमें रोटेशन अप्लाई करते हैं और हम इसको बैलेंस करते हैं। इंसर्ट और डिलीट में रेड ब्लैक में हम फास्टर रोटेशंस अप्लाई करके डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बट एवीएल ट्री में ऐसा नहीं होता। एवीएल ट्री में बहुत ज़्यादा रोटेशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं इनको बैलेंसिंग करने के लिए, इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में ये फास्ट होता है बट कैन बिकम अनबैलेंस्ड, लेकिन काफ़ी जगहों पे ये अनबैलेंस्ड भी हो जाता है रोटेशंस अप्लाई करने के बाद भी। तो इस पर भी रोटेशंस अप्लाई करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और ये मोर रोटेशंस ले सकते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रेड ब्लैक ट्री में बिगो लॉग एन है, और इन तीनों की एवीएल ट्री में भी बाइनरी सर्च ट्री में भी बिगो लॉग एन है, कैन डिग्रेड टू ओ एन, और बाइनरी सर्च ट्री में हम इसको डिग्रेड कर सकते हैं ओ एन में भी। इनकी इम्प्लीमेंटेशन ईजी है, रेड ब्लैक ट्री में ईजियर है एवीएल से, बट एवीएल ट्री की कम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, और बाइनरी सर्च ट्री की सबसे ज़्यादा ईजी है इम्प्लीमेंटेशन। बट यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है कि जो रेड ब्लैक ट्री है ये ज़्यादा इजी, जो ज़्यादा जल्दी हो जाता है एवीएल ट्री से इम्प्लीमेंट हो जाता है, बट बाइनरी सर्च ट्री इतना जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके बाद हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ रेड ब्लैक। एडवांटेजेस में ये होते हैं कि ये बैलेंस स्ट्रक्चर ऑल ऑपरेशन इन ओ लॉग एन, कि ये बैलेंस्ड इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इन सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एन है, मतलब इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आ रही होती है, इतना कॉन्फ्लिक्ट या इतना कोई खास अकर नहीं हो रहा था। ये गुड फॉर रियल टाइम सिस्टम्स हैं, सिमिलर बैलेंसिंग देन एवीएल ट्री, ये आसानी से इनको बैलेंसिंग किया जा सकता है देन एवीएल ट्री। जैसे एवीएल ट्री का हमने डिस्कस किया, एवीएल ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको बैलेंसिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। और डिसएडवांटेजेस में ये है कि स्लाइटली स्लोअर देन सर्च देन एवीएल ट्री, ये बैलेंस तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन इनको सर्च करने में काफ़ी टाइम लगता है, हार्ड टू इम्प्लीमेंट भी मुश्किल होता है, क्योंकि जब सर्च करने में मुश्किल है
तो इम्प्लीमेंट में मुश्किल होगी और बाद दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है, जैसे रेड रेड सेम आ जाए, ब्लैक ब्लैक सेम आ जाए, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट और चाइल्ड होते हैं दोनों सेम नहीं होने चाहिए, हमें दोनों पेरेंट और चाइल्ड डिफरेंट होने चाहिए। अगर एक हमारे पास पेरेंट रेड है तो चाइल्ड हमारे पास ब्लैक होना चाहिए। इसके इसके बाद हमारे assembly assembly में ये है कि रेड ब्लैक ट्री इज अ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, कीप्स ट्री हाइट स्मॉल बाय कलरिंग एंड रोटेशंस। ये एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है और ये एक स्मॉल है बाय कलरिंग एंड रोटेशंस। इसमें डिफरेंट रोटेशंस अप्लाई होती हैं, कलरिंग अप्लाई होती है। इसमें हम रेड ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं और इसको डिफरेंट डिज़ाइन से यूज़ कर सकते हैं। यूज इन मैनी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज एंड सिस्टम। इसको डिफरेंट प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें डिफरेंट इसके यूजेस हैं और इसमें काफ़ी सारी रोटेशंस, रेड एंड ब्लैक कलर्स की रोटेशंस टू अप्लाई की जाती हैं इनको मेंटेन करने के लिए, रेड ब्लैक ट्री को इक्वल बैलेंस करने के लिए। और इन रियली वर्ल्ड सिस्टम में बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, मैनी देन एवियर इन मैनी केसेस। ये बहुत ज़्यादा एवियर ट्री में भी यूज़ होता है।